Good morning, dear students. Today we are going to discuss about another important chapter from our grammar book, that is called the modals or the auxiliary verbs. Now let us read these sentences first, then we'll come to know what are modals, what are auxiliaries. The tailor is stitching the clothes. He has done his work. Did he go there? I can do this work. You must do this work. Now look at the first sentence. In the first three sentences, the verb is, has, and did. They are the form of primary auxiliaries. Be, have, and do. Now in sentence number 4 and 5, the auxiliaries can and must are called the modal auxiliaries. Now what is the difference between them? What is an auxiliary verb actually? An auxiliary verb is a verb that helps other verbs to form tense, mood, or a voice. Now how many kinds of auxiliaries are there? Auxiliary verbs are of two kinds. They can be divided or categorized in two categories. First one is the basic or the primary auxiliaries. Be form, have form, and do form. They are known as primary auxiliaries, the helping verbs which help another verb, a main verb, to qualify the tense or the meaning of the sentence. Now modal auxiliaries. What are modal auxiliaries? Can, could, shall, should, etc. They are the modal auxiliaries. Now what did we understand? We understood that a modal or modal auxiliary can be defined as an auxiliary verb. It is an auxiliary verb, it is a helping verb which is used with a मेन वर्ब, जो एक मेन वर्ब के साथ यूज होती है टू एक्सप्रेस आइडियाज, आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, सच एज पॉसिबिलिटी, परमिशन, एडवाइस एंड इंटेंशन. देन वी कम टू नो अबाउट द काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज की काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज क्या क्या है, ऑक्सिलरीज कितने प्रकार की होती हैं. तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज, इन्हें हम सेकेंडरी ऑक्सिलरीज के नाम से भी जानते हैं. नाउ व्हाट आर मॉडल्स? The modals do not have S forms. They do not have ing form or they do not have ed participle form. Like we have done in finite and non-finite verbs की verb को हम ing form के साथ present participle बनाते हैं, ed के साथ उन्हें past participle बनाते हैं. But जो modal auxiliaries होते हैं उन्हें S form के साथ present form नहीं बनाया जा सकता, ing form के साथ उन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बना सकते और ईडी फॉर्म के साथ हम उन्हें पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट फॉर्म नहीं बना सकते हैं. दे डू नॉट चेंज. नाउ द मॉडल्स कैन, मे, शैल एंड विल हैव देयर पास्ट फॉर्म. दे आर यूज्ड इन देयर पास्ट फॉर्म. द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इज कुड, द पास्ट फॉर्म ऑफ मे इज माइट, द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल इज शुड, एंड द पास्ट फॉर्म ऑफ विल इज वुड. द मॉडल्स मस्ट, डेयर, need, ought to, and used to. They do not have such forms. They cannot be changed to the past. They remain same in the past form also and in the present form also. They are used with the main verbs to form sentences. इन्हें मेन वर्ब्स के साथ यूज किया जाता है ताकि एक आप सेंटेंस में अपना आइडिया जो है वो क्लियर कर सकें. द मॉडल एक्सप्रेस आइडियाज. द मॉडल्स जो आइडिया एक्सप्रेस करते हैं वो होते हैं या तो एबिलिटी, कुछ करने की क्षमता, what you can do, possibility, कुछ करने की संभावना या किसी चीज के होने की संभावना, permission यानी किसी चीज की अनुमति देना, obligation यानी किसी चीज के लिए बाध्यता, किसी चीज की कंपल्शन शो करने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स फर्स्ट. पॉजिटिव फॉर्म है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, नीड, मे एंड माइट. इनके नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं हम कैन नॉट, कुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट के साथ, और इनके कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव भी बनाए जा सकते हैं. इनको हम शॉर्ट फॉर्म में, जो हमने एब्रीविएशन फॉर्म कहते हैं, हम इन्हें एब्रीविएटेड फॉर्म कहते हैं कि कैन नॉट को हम शॉर्ट में कांट, कुड नॉट को कुडंट, शैल नॉट को शंट, शुड नॉट को शुडंट या शुंट, विल नॉट को वॉन्ट, एंड वुड नॉट को वुडंट, मस्ट नोट को मस्टंट, और ओट नोट को हम नहीं चेंज करते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम नहीं बनाते हैं. नीड नॉट, नीडंट. अब इनका यूजेस,
कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं मॉडल वर्ब्स होते हैं, उन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कैन को। कैन इज यूज एज द मॉडल ऑफ एबिलिटी और कैपेसिटी। आप में क्या करने की क्षमता है वो दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे ही कैन रन फास्ट, आई कैन स्पीक फ्रेंच। इट इज ऑल्सो यूज टू सीक और गिव परमिशन। ये परमिशन देने के लिए, फॉर्मल परमिशन देने के लिए भी ये यूज होता है। जैसे यू कैन गो नाउ। और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, किसी चीज की संभावना प्रदर्शित करने के लिए कैन का यूज होता है कि लाइक अ सॉल्यूशन कैन बी फाउंड फॉर दिस प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाया जा सकता है। किसी की नॉलेज और स्किल बताने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है कि आई कैन ड्राइव अ कार। ड्राइविंग कार एक स्किल होता है, कोई क्षमता, कुछ चीज, कोई काम करने की क्षमता, कोई खूबी आप में है। लाइक आई कैन पेंट, ही कैन सिंग, तो ये एबिलिटी है, इसको शो करने के लिए कैन का यूज होता है। रिक्वेस्ट फ्रेम करने के लिए, परमिशन मांगने के लिए भी कैन का यूज होता है। कैसे? कैन आई रीड दिस न्यूज़पेपर, क्या मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ। और उसके पास्ट फॉर्म है कुड। कुड का यूज होता है एक पोलाइट रिक्वेस्ट बनाने के लिए, परमिशन के लिए, एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए, कोई पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए और सजेशंस के लिए। इनके लिए हम कुड का इस्तेमाल कहते हैं। जैसे कुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन, कुड आई यूज योर स्कूटर प्लीज, ही कुड स्विम व्हेन ही वाज यंग। नाउ यूज ऑफ मे एंड माइट। मे और माइट का यूज कहाँ होता है? मे का यूज होता है टू टेक परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड विश। लाइक मे आई कम इन, पॉसिबिलिटी ही मे कम टुडे, विश करने के लिए मे शी लिव लॉन्ग। और माइट का यूज होता है इनके पॉसिबिलिटी के लिए, टू एक्सप्रेस रिमोट और डिस्टेंट पॉसिबिलिटी। जो पॉसिबिलिटी अभी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, ज्यादा संभावना नहीं है, डिस्टेंस पॉसिबिलिटी है, चांसेस ज्यादा नहीं है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज होता है। जैसे इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है। परमिशन के लिए माइट आई यूज योर पेन, और ही माइट सी यू। और इंटेंशन, आपका कोई इरादा है, कुछ आप करना चाहते हैं, वो शो करने के लिए भी माइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ शेल एंड विल। शेल का यूज सिंपल फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस करने के लिए होता है वी के साथ और आई के साथ। लाइक आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। कमांड के लिए शेल का यूज होता है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, कुछ कमांड, थ्रेट या प्रॉमिस शो करने के लिए। जैसे यू शैल गो देयर, ये कमांड है। यू शैल गेट अ रिवॉर्ड, ये प्रॉमिस है। डिटर्मिनेशन शो करने के लिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय। दे शैल गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट, यू शैल नेवर लैक ऑफ मनी। विल का यूज कहाँ होता है? विल का यूज होता है सिंपल फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए विथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। विलिंगनेस और इंटेंशन शो करने के लिए यूज होता है। जैसे आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन। इंटेंशन और प्रॉमिस शो करने के लिए दैट आई विल गो इफ आई कैन। डिटर्मिनेशन शो करने के लिए जैसे वी विल डू दिस और डाई, हम ये काम डू और डाई यानी हर हालत में पूरा करेंगे। विल इज यूज्ड इन कंडीशनल क्लोजेस ऑल्सो, जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, कि अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे। रिक्वेस्ट फ्रेम करने के लिए भी विल का यूज होता है। जैसे विल यू प्लीज लेंड मी योर पेन, कि क्या आप मुझे अपना पेन दे देंगे। अब यूज ऑफ मस्ट, ये हमारे पास ऑब्लिगेशन का यूज है कि कैसे हम ऑब्लिगेशन के लिए, कंपल्शन के लिए मस्ट का, नीड का और ought to का इस्तेमाल करते हैं। मस्ट इज यूज्ड फॉर ऑल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के साथ ही मस्ट का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस में। जैसे कंपल्शन के लिए, किसी चीज की बाध्यता है, जरूरी है कोई काम करना, अनिवार्यता है, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। लाइक ही मस्ट गो नाउ या आई मस्ट गो टू द बैंक। ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन या ड्यूटी, जब आपकी किसी काम को करने के लिए कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है, तो हम उसे ऑब्लिगेशन कहते हैं। कैसे? वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, हमें हमारे देश के जो रूल्स हैं, लॉज हैं, कानून हैं, हमें उनका पालन करना ही चाहिए। वी मस्ट डू इट। शी मस्ट टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, उन्हें अपने बच्चे की देखभाल
करना ही चाहिए। जैसे आप पढ़ते हैं और आपके लिए एग्ज़ाम में पास होना, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए क्या ज़रूरी है? पढ़ना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो यू मस्ट स्टडी टू पास। आपको स्टडी करना ही होगा पास होने के लिए, अदरवाइज आप पास नहीं होंगे। सर्टेनिटी यानी किसी चीज़ की निश्चितता, ये कोई निश्चित रूप से होने वाली है कोई चीज़, तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। लाइक मैन मस्ट डाई, कि सभी व्यक्ति जो होते हैं एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी मृत्यु होती है, तो मैन मस्ट डाई। एवरीवन मस्ट ग्रो ओल्ड, कि हर व्यक्ति समय के साथ साथ बूढ़ा होता है। अब एडवाइस के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट सी ए डॉक्टर, आपकी तबीयत खराब लग रही है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, तो हम यूज कर रहे हैं मस्ट का एडवाइस के रूप में। शी मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली, कि आप उन्हें ना क्लास ना रेगुलर अटेंड करनी चाहिए। तो यहाँ हम सजेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन जरूरी एडवाइस कर रहे हैं। अब यूज ऑफ नीड, नीड का क्या इस्तेमाल होता है? द फॉर्म नीड इज यूज फॉर ऑल पर्सन इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस। किस चीज के लिए? एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। इन नेगेटिव सेंटेंसेस इफ एक्सप्रेसेस एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, जैसे यू नीड नॉट गो देयर। जब हमें एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन मतलब कोई चीज अगर करने के लिए जरूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है, बाध्यता नहीं है कोई काम करने के लिए, तो हम वहां नीड नॉट का इस्तेमाल करते हैं कि यू नीड नॉट गो देयर। तो ये चैप्टर आपकी बुक में, आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड है, आपके एग्जाम में नहीं असेस होगा, तो यू नीड नॉट डू दिस। इट इज अ हॉलीडे टुडे, यू नीड नॉट गो टू स्कूल टुडे, कि आज तो छुट्टी है, आज आपको स्कूल नहीं जाना है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म इसके पास्ट टेंस में डिड नॉट का मतलब होता है नीड, और डिड का मतलब डिड आई नीड की तरीके से ये यूज किया जाता है। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ शुड? शुड का क्या इस्तेमाल है और कैसे शुड को इस्तेमाल किया जाता है? शुड इज द पास्ट टेंस ऑफ शेल। शुड जो होता है वो पास्ट का, शेल का पास्ट टेंस होता है। जैसे अभी हमने कहा था कि शेल जो है वो फ्यूचर को, वो एक्शंस को जो हमने फ्यूचर में एक्शन प्लान किए हैं उनके लिए यूज होता है। तो शुड इज यूज्ड इन द पास्ट टेंस ऑफ शेल, लाइक दे सेड दैट ही शुड गो एंड अटेंड। Should is also used to express duty, advice, suggestion and obligation. Like you should respect your elders. आपको अपने elders को respect करना ही चाहिए। You should be punctual. आपको punctual होना चाहिए। Purpose show करने के लिए भी should का इस्तेमाल होता है कि you worked hard so that she worked hard so that she should pass. उसने बहुत मेहनत की है इसीलिए उसे पास हो जाना चाहिए, उसने बहुत मेहनत की है, उसे पास होना ही चाहिए। तो इट इज यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र रिक्वेस्ट शो करने के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आई शुड बी ग्रेटफुल टू यू। वी यूज इट फॉर स्टेटिंग इमेजिनरी रिजल्ट। इमेजिनरी रिजल्ट कोई होता है, कोई डिसीजन होता है, कोई ऑर्डर होता है, तो भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। I hope children this chapter you have understood well and you are able to do the exercises related to this chapter in your book.